عالمی تعلقات کی بنیاد بالادستی کے بجائے اصولوں پر ہونی چاہیے. ایک دوسرے کے معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرنی چاہیے. دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، ان میں سے کشمیر پر بھارت کا غیر قانونی قبضہ بھی ایک چیلنج ہے. پاکستان چین کے تعلقات مثالی ہیں. پاکستان چین کے تجربات سے سیکھ رہا ہے. ساتھ ڈاکٹر عارف الوی کا چینی میڈیا کو انٹرویو. ملک میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر این سی او سی اجلاس میں اہم فیصلے. 17 جنوری کو صوبائی وزرائے صحت اور تعلیم کا اجلاس طلب. وفاقی اکائیاں آکسیجن اور ادویات کے ذخائر کا فوری سروے کریں. 17 جنوری سے ہوائی سفر اور پبلک ٹرانسپورٹ میں کھانے کی خدمات پر مکمل پابندی ہوگی. تعلیمی اداروں اور ٹرانسپورٹ سمیت عوامی اجتماع کے ہر مقام پر ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت. اوورسیز پاکستانیوں کا وزیراعظم عمران خان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار. بیرون ملک سے ترسیلات کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. جولائی سے دسمبر کے دوران اوورسیز پاکستانیوں نے 15.8 ارب ڈالرز کی رقم پاکستان بھیجی. وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین کا ٹویٹ. امید ہے رواں سال 5% گروتھ ریٹ حاصل کریں گے اور 6,000 ارب روپے ٹیکس بھی جمع کریں گے. توانائی کے حوالے سے تاریخی قانون سازی کی گئی ہے. موجودہ دور حکومت میں 24,700 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل کی گئی. وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کی پریس کانفرنس. گزشتہ 3 سال میں پاکستان پوسٹ کی آمدن میں 15 ارب روپے کا اضافہ ہوا. 12 سال بعد رواں مالی سال میں ادارہ سالانہ خسارہ ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا. پاکستان پوسٹ گزشتہ 3 سال میں بین الاقوامی رینکنگ میں 94 میں سے 62ویں نمبر پر آ گیا ہے. مواصلات کے وفاقی وزیر مراد سعید کا ٹویٹ. کراچی میں سندھ بلدیاتی ترمیمی بل 2021 کے خلاف متحدہ اپوزیشن کا بھرپور احتجاجی مظاہرہ. پاکستان تحریک انصاف، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، ایم کیو ایم پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے رہنماؤں سمیت عوام کی بڑی تعداد دھرنے میں شریک. متنازع قانون کے خلاف 27 فروری کو گھوٹکی سے کراچی کی جانب مارچ کیا جائے گا. بحری امور کے وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی کا اعلان. اس کے علاوہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں ضرورت مند افراد کے لیے دیوار احساس کے قیام. رومانوی شاعر محسن نقوی کے یوم وفات اور ممتاز دانشور شاعر واصف علی واصف کے یوم پیدائش کے حوالے سے رپورٹس بھی کیپ دا ٹاور کا حصہ ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. کیبنٹ ٹاور کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں سلما کوثر. ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں. ایک بار پھر سے رخ کریں گے کراچی کا، جہاں پر سندھ بلدیاتی قانون میں ترمیم کے خلاف سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج جاری ہے اور وفاقی وزیر علی زیدی خطاب کر رہے ہیں. 27 فروری کو فرما رہے ہیں کہ میں کراچی سے اسلام آباد مارچ کروں گا، تو میرا بھی اعلان سن لو. تحریک انصاف آپ سب کے ساتھ مل کے 27 فروری کو گھوٹکی سے کراچی مارچ کرے گی. ہم آرٹیکل 148 کی جو خلاف ورزی تم کر رہے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ کراچی ہم پورا سندھ بند کر دیں گے، ہم لاڑکانہ بند کر دیں گے، ہم نواب شاہ بند کر دیں گے، ہم میرپور خاص بند کر دیں گے، ہم حیدرآباد بند کر دیں گے، ہم سکر بند کر دیں گے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے یہاں بدماشی جو لگائی ہے وہ چلتی رہے گی ایسے؟ بہت ہو گیا. اب ٹائم آ گیا ٹیمپریچر بڑھانے کا، زرداری. اور انشاءاللہ ہم سب مل کے، ہم سب مل کے انشاءاللہ اس کا تختہ پلٹ کے رہیں گے انشاءاللہ سندھ کے. آخر میں وہ پیچھے سے مجھے
सुन लो, अजान होने वाली है। मैं एक शेर पे, मुझे इजाजत दो कि मैं सिर्फ एक शेर आपको सुना के मैं आपसे फिर इजाजत मांगू कि खालिद भाई ने भी बात करनी है। एक बड़ा अच्छा शेर है, एक बड़ा अच्छा शेर है, हाँ? वो वाला शेर नहीं, वो शेर नहीं है, वो तो गीदड़ है, शेर के कपड़े पहन के एवर फील्ड में बैठा है। मैं अशार एक शेर पढ़ रहा हूँ, सुनो। एक शेर सुनाना चाहता हूँ सबको। वो दागे सजूद, सुना है ना, सजदे का दाग, सुनो एक मिनट। दागे सजूद ये हमारे सबके लिए है, हम ये काम करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। दागे सजूद गर तेरी पेशानी पे हो तो क्या, दागे सजूद गर तेरी पेशानी पे हो तो क्या, कोई ऐसा सजदा करके जमीन पर निशान है। आसिफ जरदारी, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है, हम आ रहे हैं तुम्हारे लिए। पाकिस्तान बल्दियाती कानून में तरमीम के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सिंध भर की अपोजिशन जमातों का मुश्तरका एहतजाज, और इससे खिताब कर रहे थे वफाकी वजीर अली हैदर जैदी। उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी का वक्त ख़त्म हो गया है, इन्हें घर जाना होगा। तहरीक इंसाफ अपोजिशन जमातों से मिलकर कराची से घोटकी तक मार्च करेगी, इसका ऐलान किया वफाकी वजीर अली हैदर जैदी ने। नए बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध की तमाम अपोजिशन जमातें एहतजाज कर रही हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि आलमी ताल्लुकात की बुनियाद बालादस्ती के बजाय उसूलों पर होनी चाहिए। एक दूसरे के मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है, इनमें कश्मीर पर भारत का गैर कानूनी कब्जा भी एक चैलेंज है। चीनी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, पाकिस्तान और चीन मुसलसल दुनिया में अमन की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान चीन के मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के तजुर्बात से सीख रहा है। There is a long history now of continuously improving relationship, which started in the 50s, continued tremendously in the 60s. You know, Pakistan and China. In fact, China's link to the world was established through Pakistan with the visit of Henry Kissinger in 1973 to China. And Pakistan and China particularly think alike on all issues. And therefore, with the changing flux which is happening in the world, there has to be principles on which the new order should come, rather than hegemony of countries. China and Pakistan would like that the order, for example, in trade, in cooperation and prosperity, in the one belt, one road concept, in the CPEC which Pakistan has. I think in all these areas there is improving relationship between China and Pakistan. And this relationship is not related only to the leaders, it is a people's relationship. If you go out and talk to people in Pakistan on the street level, they have admiration for China as a friend. And I think similarly the same thing will happen in China if you go out and talk about Pakistan. So I think the last 70 years have been tremendous. It's a good example to the world of how countries can be friendly based on principles and mutual understanding between them. सदर ममलिकत ने कहा कि दुनिया को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, भारत का कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा भी एक बड़ा चैलेंज है। सीपैक के बारे में सदर ने कहा कि ये ताउन की मुनफरिद शक्ल है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान सीपैक मनसूबों पर कलील मुद्दती मुफाहमत $62 बिलियन थी। इसके पाकिस्तान की मईशत पर ज़बरदस्त असरात मुरतब होंगे। CEPC के खिलाफ भारत की जानिब से शुरू किए गए प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान वसी ताउन जारी है। सदर ने इस बात का इआदा किया कि इन कसीरुलजहती मनसूबों के जरिए पाकिस्तान में लोगों को रोज़गार के मज़ीद मौक़े मैसर आएंगे और गुरबत से बाहर आएंगे। ग्वादर बंदरगाह की अहमियत को उजागर करते हुए सदर ने कहा कि ये खलीजी खित्ते के करीब वाक़ सबसे बड़ी बंदरगाह है और अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई जमहूरिया के लिए मुख्तसर तरीन रास्ता है।
صدر مملکت نے دونوں ممالک کی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ چین سے گوادر اور گوادر سے چین تک سامان کی نقل و حرکت یقینی بنانے کے لیے مزید کوششیں کریں۔ صدر نے اس بات پر زور دیا کہ سائبر سیکیورٹی اور انسانی وسائل کو ترقی دینے کے لیے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے JF-17 تھنڈر کی تیاری کو دونوں ممالک کے درمیان تعاون کی ایک اچھی مثال قرار دیا۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کو انسانی بحران سے بچانے کی خاطر افغان عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ضرورت کے وقت افغانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اسلام آباد میں افغانستان کے بارے میں ایپیکس کمیٹی کے تیسرے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے اقوام متحدہ کی جانب سے افغانستان کے لیے امداد کی اپیل کا خیر مقدم کیا۔ ایپیکس کمیٹی نے اس بار پھر افغانستان میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری اور امدادی اداروں سے اپیل کی کہ وہ اس نازک موڑ پر افغان عوام کو امداد فراہم کریں۔ وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ دوست ممالک کے ساتھ مل کر تعاون کے امکانات تلاش کریں اور افغانستان میں انسانی بحران روکنے کے لیے میڈیکل، IT، فائنانس اور اکاؤنٹنگ کے شعبوں کے ماہرین بھیجے جائیں۔ انہوں نے افغانستان کی بحالی اور ترقی میں مدد کے لیے ریلوے، معدنیات، فارماسیوٹیکل اور میڈیا کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی بھی ہدایت کی۔ ایپیکس کمیٹی کو افغانستان کے لیے 5 ارب روپے کی امداد کا حوالہ سے ہونے والی پیش رفت کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ امدادی پروگرام میں غذائی اجناس، 50,000 میٹرک ٹن گندم، ہنگامی طبی سامان، موسم سرما میں رہنے کے لیے پناہ گاہیں اور دیگر سامان شامل ہیں۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ افغانستان اس وقت سخت سردی کے باعث بھوک اور بحرانی صورتحال کے دہانے پر ہے۔ بحران لوگوں کے لیے مناسب خوراک اور رہائش کا حصول مشکل بنا دیتا ہے۔ کمیٹی نے افغان عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے امدادی اداروں پر فوری کارروائی کرنے پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ لاکھوں افغان موت کے دہانے پر ہیں۔ امریکہ اور عالمی بینک افغانستان کے منجمد فنڈز بحال کرے۔ نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی کہ افغانستان کو معاشی اور سماجی تباہی سے بچانے کے لیے امداد کی فراہمی کے ساتھ بینکنگ نظام کو پھر سے شروع کرنے کے لیے تعاون بڑھایا جائے۔ انتونیو گوتریس نے کہا کہ یہ بحران لاکھوں لوگوں کے لیے غربت، بھوک اور بدحالی کا باعث بنے گا۔ Freezing temperatures and frozen assets are a lethal combination for the people of Afghanistan. Rules and conditions that prevent money from being used to save lives and the economy must be suspended in this emergency situation. International funding should be allowed to pay the salaries of public sector workers and to help Afghan institutions deliver healthcare, education, and other vital services. The United Nations in Afghanistan stands ready to work with member states and others to put in place accountable systems that will enable funds to reach the Afghan people most in need and to ensure that these funds are not diverted. As I appeal to the international community to step up support for the people of Afghanistan, I make an equally urgent plea to the Taliban leadership to recognize and protect fundamental human rights, and in particular, the rights of women and girls. افغان عبوری حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے منجمد اثاثوں کی بحالی اور بینکنگ سسٹم شروع کرنے کے حوالے سے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کی اپیل کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو بین الاقوامی آواز کا مثبت جواب دینا چاہیے۔ افغانستان میں انسانی بحران اور ان کی امداد کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں ایاز وزیر صاحب، سابق سفارتکار ہیں۔ بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب، آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے لیے وقت نکالا۔ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت افغانستان کی ایڈ کے لیے تو اپیل بھی کی جا رہی ہے، سیکریٹری UN نے بھی کہا ہے کہ افغانستان میں موجود لوگ اس وقت مدد کے طلبگار ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ کیا امریکہ کو انفلوئنس کرنا اتنا مشکل کام ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہیے گا کہ وہاں پر ہم ایڈ کی بات تو کر رہے ہیں کہ افغانستان میں جو لوگ ایڈ کے منتظر ہیں ان کی مدد کی جائے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ ریونیو جنریشن کتنا مشکل کام ہے، جاب اپرچونٹیز ہم کب تک دیکھیں گے، مستقل حل کیسے نکلے گا؟ دیکھیے، امریکہ کو کنونس کرنا مشکل اس لیے ہے کہ وہ خود بہت بڑی طاقت ہے، سپر پاور ہے، بلکہ UN کے اندر سب سے زیادہ انفلوئنس اسی کا ہے، ملکوں میں بھی انفلوئنس اسی کا ہے، اور ان کا جو ریئیکشن ہے طالبان حکومت کی افغانستان کے اندر وہ بھی معلوم ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ طالبان حاوی نہ ہو جائے، آہستہ آہستہ ان کو کمزور کر کے تاکہ ان کی حکومت گرا دی جائے یا فارغ کر دی جائے۔ تو اس لیے ان کے جو اثاثے ہیں امریکہ بینکوں کے اندر
कोई करीबन $9.5 बिलियन है, वो उन्होंने मुंजमद किए हैं। बाकी दुनिया के ऊपर भी ये पाबंदी लगा दी है कि तालिबान के ज़ेर साया यानी अफगानिस्तान के अंदर बैंकों के साथ पैसों का लेन देन न करे ताकि तालिबान के ऊपर प्रेशर हो। हाँ, इंसानी हमदर्दी की बात वो ज़रूर करते हैं कि हम अफगान अवाम की मदद करेंगे, लेकिन मदद आप कैसे करेंगे जब आप बैंकों को वहाँ पैसे भेजने की इजाज़त नहीं देते। लेकिन जाहिर बात है दुनिया का प्रेशर भी बढ़ रहा है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने अब भी कह दिया, यहाँ पे जो आईसी की कॉन्फ्रेंस हुई थी उस वक्त भी ये सब उन ममालिक ने डिमांड की थी कि अफगानिस्तान की इंसानी हमदर्दी के तहत मदद की जाए। तो प्रेशर तो है, लेकिन मैंने जैसे अर्ज कर लिया, अमेरिका अपना इंटरेस्ट पहले देखता है फिर दुनिया को सुनता है। लेकिन बहरहाल कितनी देर तक वो अफगान हुकूमत के ऊपर ये प्रेशर कंटिन्यू करेंगे, ये आइंदा देखने वाली बात है। बाकी आपने रेवेन्यू जनरेशन की बात की अफगानिस्तान के अंदर, तो जाहिर बात है जब दूसरे ममालिक अफगानिस्तान हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे तो उनके साथ तिजारत और बाकी जो चीज़ें करनी होती है, जैसे हुकूमत आपस में करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, मुआहदात करते हैं, तिजारत बढ़ाते हैं, वो उस लिहाज से तो नहीं होता, या नौकरी के मौके मिलते हैं उस तरह तो नहीं होता। लेकिन बहरहाल कुछ थोड़ा बहुत उनके बॉर्डर से जो इनकम आती है वो भी है और अंदरूनी भी तो, लेकिन वो नाकाफी है उनकी हुकूमत चलाने के लिए, तो उनको मदद चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान की हुकूमत को न पहले इतनी बड़ी दौलत की ज़रूरत थी, न अब भी वो है। वो सादा लोग हैं, अपने लिए ज़्यादा परेशान नहीं है, लेकिन जाहिर बात है अफगान अवाम के लिए परेशानी है। वज़ीर साहब, अभी जो मौसम की सूरत हाल है, जिस तरह से सख्ती हो रही है मौसम की और बहरान की बात हो रही है, पाकिस्तान दोस्त ममालिक के साथ मिलकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एपेक्स कमेटी के इजलास में कहा कि एक मैकेनिज्म बनाया जाए जिसमें पाकिस्तान मेडिकल के शोबे में, आईटी, फाइनेंस और दीगर जो मादनियात के शोबे हैं, क्या हम तस्लीम किए बगैर आगे बढ़ सकते हैं? जैसे ओआईसी के इजलास में बहुत सारे ममालिक ने बहुत सारे वादे किए और अफगान अवाम की मदद करने की अपील की गई थी। देखिए, बढ़ तो सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय तो शुरू से यही रही है कि हम क्यों शर्मा रहे हैं अफगान हुकूमत को तस्लीम करने में। अफगान हुकूमत के फायदे या नुकसानात सबसे ज़्यादा हमारे लिए हैं। अगर वो मुस्तहकम हो जाते हैं, इस्टेब्लिश हो जाते हैं, कभी हो जाते हैं, तो हमारे जो दुश्मन हैं हमें तंग करते हैं, उनको जगह नहीं मिलेगी और अफगानियों का प्रेशर हमारे ऊपर नहीं बढ़ेगा। और अगर खुदा न खास्ता वहाँ गड़बड़ हो जाती है, हुकूमत दरमियान से चली जाती है, वही 1990 वाला मामला शुरू हो जाता है, अंदरून खान सिविल वार शुरू हो जाती है, तो फिर किसको ज़्यादा तकलीफ है, हमें है या अमेरिका को है? तो हमें अपने मफादात देखने चाहिए। हमने पहले कहा था कि रीजनल कंट्रीज के साथ जाएंगे, लेकिन रीजनल कंट्रीज का अप्रोच अब चेंज होता जा रहा है। वो अपने इंटरेस्ट देखते हैं, वो इकट्ठे फैसला करने के लिए मेरा ख्याल तैयार नहीं होंगे। तो पाकिस्तान सोच समझ के फैसला कर ले, या तो डिस्टेंस रख ले, उनसे हट जाए, ख़त्म छोड़ दे, या अगर आप इस वक्त नहीं हट सकते क्योंकि दुनिया को मालूम है, आपको खुद भी मालूम है, आपके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, तो आप उनके साथ उन ताल्लुकात की वजह से उनके बिना पे उनको रिकग्नाइज कर ले, उनके साथ ऐसे रवाबित रखे जैसे दूसरे हुकूमत के साथ लोग रखते हैं। लेकिन बहरहाल हुकूमत वाले हमारे खुद बेहतर समझते हैं, वो जो भी फैसला कर ले। वज़ीर साहब, आपने फरमाया कि तमाम ममालिक ज़ाहिर है अपना इंटरेस्ट देखते हैं, तो जब इंटरेस्ट की बात आती है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ अमेरिका है, दोनों के दरमियान जब चूज़ करना पड़ेगा तो किसका पलड़ा आपके ख्याल में भारी होगा? बाकी ममालिक का झुकाव किस तरफ होगा? क्योंकि अफगानिस्तान को इस सूरत हाल में तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। देखिए, मैं बाकी ममालिक के बारे में तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन पाकिस्तान की अगर उस लिहाज से आप असेसमेंट करना चाहते हैं तो मैं तो समझूंगा कि अमेरिका से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए अफगानिस्तान इसलिए है कि वो इमीडिएट पड़ोसी है, उससे मेरी जान नहीं छूटती है। जोग्राफिया हम बदल नहीं सकते। अमेरिका हज़ारों मील दूर है, अफगानिस्तान साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये वहाँ मुसीबत है तो यहाँ मुसीबत है, वहाँ खुशहाली है तो यहाँ खुशहाली है। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे मुल्कों की दुश्मनी मोल ले और अफगानिस्तान के साथ चले, नहीं,
उनके साथ भी ताल्लुकात अपने मेंटेन रखे, बरकरार रखे, बढ़ाते जाए, लेकिन अफगानिस्तान के साथ जो आपके मुश्किलात है वो दुनिया को समझा दे, दुनिया समझती है, आप उसी के मुताबिक पाकिस्तान तो अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हुकूमत को वैसे तस्लीम नहीं किया गया, क्योंकि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि हम आलमी बरादरी के साथ मिलकर ही जो फैसला होगा, पाकिस्तान भी अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर आप PTV न्यूज़ से बात कर रहे थे, और पाकिस्तान की जानिब से इमदाद का जो सामान है वो भी फराहम किया जा रहा है, और बहरान से निपटने की हर मुमकिन कोशिश भी की जा रही है। और एक तीसरा एपिक्स कमेटी का इजलास सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के हवाले से हुआ, जिसमें तमाम अभी तक का जो मैकेनिज्म तैयार किया गया है, जो खदशात हैं उनका इजहार किया गया, और दोस्त ममालिक के साथ मिलकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एपिक्स कमेटी के इजलास की सदारत भी की और उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई है। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करते हैं। मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए रुझान का जायजा लेने के लिए NCOC का इजलास हुआ। फोरम ने बढ़ती हुई वबा से निपटने के लिए जरूरी इक़दामात के लिए सूबों और खासतौर पर सिंध हुकूमत के साथ फौरी राब्ते का फैसला कर लिया है। NCOC ने 17 जनवरी से हवाई सफ़र और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने की खिदमात पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला किया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी से कहा गया है कि वो इन फ्लाइट मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाए और तमाम हवाई अड्डों पर कोरोना SOPs नाफिज करे। फोरम ने फेडरेशन यूनिट से कहा है कि मौजूदा NPIs को सख्ती से ट्रांसपोर्ट, तालीम, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स में नाफिज करें और SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त इकदामात किए जाएं। विफाकी इकाइयों से कहा गया है कि वो सेहत की देखभाल के सहूलियात, ऑक्सीजन के ज़ख़ीरे और अद्वियात के ज़खायर का फौरी सर्वे करें। फोरम ने 17 जनवरी 2022 को सूबाई वज़राए सेहत और तालीम का इजलास भी तलब किया है। NCOC ने तमाम हलकों को वैक्सीनेशन मुहिम तेज़ करने के साथ साथ वैक्सीनेशन के अहदाफ हासिल करने की कोशिशें तेज़ करने की हिदायत की है। वफाकी वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार जारी है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि एक बार फिर बैरून मुल्क से तरसीलात का रिकॉर्ड टूट गया। उन्होंने कहा कि तरसीलात 11.3% बढ़ी, जबकि जुलाई से दिसंबर के दौरान 6 माह में 15.8 अरब डॉलर की रकम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान भेजी है। तवानाई के वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3 साल में बुनियादी इस्लाहात की हैं, जिसकी वजह से मुल्क में सनतों और बरामदात को फ़रोग़ मिला है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि तवानाई के शोबे में तारीखी कानून साजी की गई है और मौजूदा दौरे हुकूमत में 24,700 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की गई है। कस्टम्स पॉलिसी को FBR और टैक्स से अलहदा किया गया। 200 अरब के करीब ऐसी इनपुट्स हैं जिनके ऊपर ज़ीरो टैक्स जो है वो कर दिया गया है, और इससे भी हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग मिला है, एक्सपोर्ट्स को फ़रोग मिला है। एक्सपोर्ट्स जो पिछली हुकूमत में नीचे गई थी वो इंशाल्लाह ताला इस साल हम 30 अरब डॉलर पे लेके जाएंगे। पहली मरतबा ऐसा हुआ कि हमने जो रिफॉर्म्स किए उसके नतीजे में पूरी दुनिया जो है वो FATF की कंप्लायंस की तारीफ़ कर रही है पाकिस्तान की, और जो 27 निकाती एजेंडा हमें दिया गया था, जो सारी दुनिया समझती थी कि इतने छोटे अरसे में ये मुकम्मल नहीं कर सकेंगे, पिछली हुकूमत के दौर में दिया गया, उसमें से हम 26 पॉइंट मुकम्मल कर भी चुके हैं। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर ने कहा कि उम्मीद है रवा साल 6,000 अरब टैक्स इकट्ठा करेंगे। नीलम जहलम पावर के फ़ेज़ 2 से भी बिजली की पैदावार शुरू हो गई है। हम्माद अज़हर ने कहा कि अजनास के रेट बढ़ाकर किसान को सहूलतें दी गई। पिछली हुकूमत का सारा दारोमदार इंपोर्टेड ईंधन पे था। अगर यही इंपोर्टेड LNG और इंपोर्टेड कोयले की बजाय हमने लोकल कोयले पे प्लांट्स लगाए होते, और इस इंपोर्टेड LNG की बजाय अगर हमने डैम्स के ऊपर तवज्जो दी होती पिछले 10 साल के अंदर, तो आज यकीन माने कि शायद 1 रुपये का भी फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट हमें लग के ना आ रही होती। इस वक्त 10 डैम्स जो हैं वो ज़ेरे तामीर हैं, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान 70 से 80% जो बिजली अपनी 2030 में बनाएगा वो इम्पोर्टेड ईंधन पे नहीं बनाएगा। वो अपनी बिजली होएगी आपकी, वो या डैम से बन रही होएगी, या लोकल फ्यूल से बन रही होगी, लोकल कोयले से, या वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बन रही होएगी। और इससे हम ये जो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई की, उससे हम बाहर निकल सकेंगे। ज़िमनी मालियाती बिल 2021 ऐसी बजट इस्लाहात का नाम है जिससे एक जानिब दस्तावेजी मईशत फ़रोग पाएगी, तो दूसरी जानिब साहिब सरवत अफराद पर इजाफी टैक्स से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। तफसील से आगाह करेंगे राहील अंसार। मालियाती ज़िमनी बिल में 343 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म की गई है, ताहम आम आदमी पर इजाफी टैक्स का कोई बोझ नहीं डाला गया। लगाए गए टैक्सों में से भी 280 अरब रुपए दहिंदगान को वापस कर दिए जाएंगे। बिल में की गई तरामीम के तहत बेकरी आइटम्स, दूध,
पोट्री की ब्रांडेड मसनूआत और दूसरी कई अशिया बशमूल लैपटॉप्स पर टैक्स नहीं लगाया गया। मालियाती बिल में तमाम दरामदी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी यकसा रहेगी, जबकि मुकामी तौर पर तैयार की गई गाड़ियों पर आयद ड्यूटी को कम किया गया है। ज़िमनी बिल का मकसद ज्यादा से ज्यादा शहरियों को टैक्स नेट में लाकर तरक्की के लिए दरकार वसाइल को बढ़ाना है। डॉक्यूमेंटेशन हम नहीं रोकेंगे, हम डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर करेंगे और ये इसका पर्पस है। जब आप इनपुट पे लगा देते हैं सेल्स टैक्स, तो उसके बाद आउटपुट जो है उसके ऊपर आप उस वक्त क्लेम करेंगे जब आगे जो डॉक्यूमेंटेड होगा जिसको आप बेचेंगे। तो ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो लैपटॉप, अगर आप टेक्नोलॉजी को आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं तो लैपटॉप, तो हमने कहा यार उसके ऊपर 100% सब्सिडी दे दें। पाकिस्तान में सालाना 18 से 20 खरब रुपए की सेल्स में से सिर्फ 3 खरब 50 अरब रुपए का कारोबार दस्तावेजी सूरत में होता है। इस अमल को कंट्रोल करने के लिए भी मालियाती बिल में मौसर इकदामात उठाए गए हैं। मालियाती बिल से महंगाई में इजाफा नहीं होगा। टैक्स नेट में इजाफे से हुकूमत की आमदन बढ़ेगी, जिससे लोगों को रिलीफ फराहम किया जा सकेगा। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मवासलात के वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा है कि गुज़श्ता 3 साल में पाकिस्तान पोस्ट की आमदन में 15 अरब रुपए का इजाफा हुआ और 12 साल बाद रवा माली साल में इदारा सालाना खसारा ख़त्म करने में कामयाब हो गया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पोस्ट गुज़श्ता 3 साल में बैनुल-अक़वामी रैंकिंग में 94 में से 62वें नंबर पर आ गया है। एक नई सोच से डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस का दायरा-ए-कार पूरे मुल्क में फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन का अमल मुकम्मल होने पर नई जिद्दतें सामने आएंगी। सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल 2021 के खिलाफ मुतहदा अपोजिशन का फवारा चौक कराची में भरपूर एहतजाजी मुजाहरा जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, MQM पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल और दीगर अपोजिशन जमातों के रहनुमा धरने में मौजूद हैं। शहर भर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की दूसरी जमातों के कारकुनान काफिलों की सूरत में फवारा चौक पर पहुंचे हैं और इस काले कानून के खिलाफ भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ज़िशान अहमद खान धरने में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं एहतजाजी धरने की इस वक्त क्या सूरत हाल है। ज़िशान अहमद खान, बताइएगा, इस एहतजाजी मुजाहरे के हवाले से अब से कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने भी खिताब किया है और अब इस धरने में जो मुतालबा है तरमीमी बिल के हवाले से, बल्दियाती तरमीमी बिल, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस एहतजाजी मुजाहरे के अंदर जिस तरह कि आपने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस और MQM पाकिस्तान और फंक्शनल लीग के रहनुमा जो शामिल थे, उनका वाज़ेह मौक़िफ़ ये रहा है कि ये तरमीमी बिल जो है लोकल बॉडीज़ का है, ये काला कानून इसको करार दिया गया है, क्योंकि इससे जो है तमाम जो इख्तियारात हैं जो निजी सतह तक मुंतकिल होने थे वो भी सल्ब कर लिए गए सिंध हुकूमत की जानिब से। और इसके खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें ना सिर्फ जॉइंट अपोजिशन ने बड़ा अच्छा किरदार किया, इसके अलावा पूरे शहरों की बड़ी तादाद यहाँ पर जमा हुई और पूरे शहर में ना सिर्फ ट्रैफिक जाम था, इस वक्त आपने देखा होगा कितने हज़ारों की तादाद में यहाँ पे जमे काफ़ी तक बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे लोग आए थे। और यही हमारे जो वफाकी वज़ीर जो हैं अली ज़ैदी साहब ने, उनकी तकरीर में यही शामिल था कि ये काला कानून बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह की ब्लैकमेलिंग भी जो हुकूमत साथ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने अपने जो खिताब के अंदर एक अहम ऐलान भी किया कि 27 फरवरी को घोटकी से कराची तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करप्शन के खिलाफ भी वो एक रैली का इनेकाद कर रहे हैं, उसका भी ऐलान उन्होंने इसके अंदर किया। इसके अलावा नुसरत सहर अब्बासी जो है, खुर्रम शेख ज़मान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेख ज़मान और MQM पाकिस्तान की जानिब से आमिर खान ने भी और खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कन्वीनर हैं, उन्होंने भी खिताब किया और तमाम लोगों ने जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किए गए इस लोकल बॉडीज़ तरमीमी बिल को काला कानून करार दिया है और उसको वापस लेने के लिए हमने जो है जारी रखने का इज़हार किया है। इसके अलावा यहाँ पे 2 घंटे तक अलामती धरना भी दिया जा रहा है, जिसके तहत तमाम लोग अब तक यहाँ पे मौजूद हैं। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं इस वक्त जब मैं गफ़ीर यहाँ पे मौजूद है, अब तक लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और तमाम पार्लियामानी लीडर हजरात। और यहाँ पे हलीम आदिल शेख का भी जिक्र करता चलूँ कि उन्होंने भी जो सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो उन्होंने भी दुआदार तकरीब में यही इसका इज़हार किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने 13 साल से ज़्यादा दौरे हुकूमत के अंदर सिंध के अवाम को बिल्कुल बेकस कर दिया है। इसका ना सिर्फ यहाँ पे कोई काम करवाया खतखा का, बल्कि करप्शन का बाजार भी गर्म कर दिया है। और अब ये जो तरमीमी बिल है ना सिर्फ ये डाका है बल्कि इसको भी काला कानून करार दिया है। ज़िशान, आपने तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया। आपने इस वक्त एहतजाज का सिलसिला जारी है और धरने के शरका से खिताब भी किया है कायदीन ने। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करते हैं। बहरी उमूर के वफाकी वज़ीर और PTI सिंध के सदर अली ज़ैदी ने ऐलान किया है कि सिंध के बल्दियाती कानून 2021 के खिलाफ 27 फरवरी को घोटकी से कराची की जानिब मार्च किया जाएगा, जिसमें सिंध भर से लोग शरीक होंगे।
कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अली जैदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी हमें जमहूरियत का दर्स सिखाती है, जबकि पीपल्स पार्टी खुद जमहूरियत की सबसे बड़ी डाकू है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सूबा सिंध में सब कुछ तबाह कर दिया है। सिंध असेंबली की किसी कमेटी में अपोजिशन को चेयरमैनशिप नहीं दी गई, जबकि विफाक में बहुत सी कमेटीज़ में इनकी नुमाइंदगी है। वफाकी वज़ीर अली जैदी का कहना था कि काले बल्दियाती कानून के खिलाफ सूबे में सब जमातें एहतजाज कर रही हैं और इस बिल के वापस लिए जाने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक। साथ रहिएगा। शादी से पहले दोनों की पर्सनालिटीज फर्क होती हैं। जब आप साथ रहना शुरू करते हैं तो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। शादी में आपको अन्य अगले को तो एक्सेप्ट करना ही करना है, लेकिन क्या आपको एक्सेप्ट किया जा रहा है कि नहीं? जब हम अपने यूथ को इन चीज़ों पे नहीं ट्रेन करते कि इंडिविजुअल लेवल पे उनको कैसे रिलेशनशिप लेके चलनी है, तो किसी को नहीं समझ आएगी कि हम शादी क्यों करते हैं। मैरिज एंड फैमिली इज वन ऑफ द बेसिक पिलर ऑफ द सोसाइटी, जिसके बगैर आपका ना इकोनॉमिक्स आगे मूव करती है, ना रिलीजन, ना पॉलिटिक्स, ना एजुकेशन। आप खूबियों और खामियों समेत अगले पार्टनर को अपने ज़ात में और अपनी ज़िंदगी में कबूल करें। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा है कि अपोजिशन की सफ़ों में दरारें पड़ चुकी हैं, जबकि हुकूमती सफ़ों में इत्तेहाद कायम है। रावलपिंडी में मिनी बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ओपोजिशन हमेशा की तरह कहती रही हम ये बिल पास नहीं होने देंगे, मगर हमने कर दिखाया है। गुलाम सरवर खान ने मजीद कहा कि ओपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पर तकसीम नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि अदालत से सजा याफ्ता नवाज शरीफ को बरतानवी हुकूमत भी अब पनाह देने को तैयार नहीं। मुस्लिम लीग नून डील होने का तासुर दे रही है, लेकिन नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, उनके साथ कोई डील करने को भी तैयार नहीं है। एक सजा याफ्ता शख्स जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने 7 साल कैद बा मुशक्कत सुनाई, उसका इस्तकबाल होगा। एक एब्सकॉन्डर का इस्तकबाल होगा। भाई एब्सकॉन्डर है, आएगा तो सीधा जेल जाएगा, आए उसे आना चाहिए। वो जेली मेडिकल लीगल लेके मेडिकल रिपोर्ट लेके 4 हफ्तों की कमिटमेंट करके वलायत गया है। अब 4 हफ्ते तो क्या कई महीने गुजर चुके हैं। अब तो बरतानवी हुकूमत भी उसे पनाह देने के लिए तैयार है। अब हुकूमत ने भी ये फैसला किया है कि हाई कोर्ट को रुजू किया जाए, उससे वापस लाया जाए। इंसदाद मनशियात के वफाकी वज़ीर एजाज अहमद शाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क में अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इनकी माशी तरक्की के लिए अमली इक़दाम कर रही है। ननकाना साहिब में अक़लियती बरादरी के मुस्तहिक़ 120 अफराद में इमदादी चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौसर ज़रई पॉलिसीज़ के बायस आज ज़रई शोबा तरक्की की तरफ गामज़न है और किसानों को उनकी अजनास की बेहतर कीमत मिल रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें की जा रही हैं। तकरीब से अरकान पंजाब असेंबली सरदार महेंद्र पाल सिंह, मोहम्मद आतिफ और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। नौजवानों को सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्जे फराहम किए जा रहे हैं ताकि वो खुद मुख्तार होकर मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत अब तक 30 अरब रुपए से ज़्यादा के कर्जे दिए जा चुके हैं। इन ख्यालात का इज़हार वज़ीर ममलकत इत्तलात फारूक हबीब और मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में किया। तफसील बताएंगे फहद जावेद। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फारूक हबीब ने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम में शफाफियत के अमल को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि नौजवानों की फ़नी तरबियत के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। 30 अरब रुपया जो कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत तकसीम किया गया, उससे 22,000 नए कारोबार शुरू किए गए, जिन कारोबारों से डायरेक्टली 50,000 जो है वो लोगों को रोज़गार मुहैया हुआ, और इसके अलावा जो इनडायरेक्टली मुंसलिक कारोबार हैं, इनडायरेक्टली जो जॉब क्रिएशन हुई है,
وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ معاون خصوصی برائے امور نوجوانان عثمان ڈار نے کہا کہ ماضی کی حکومتوں نے نوجوانوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ 18 سال سے 45 سال کا ہر فرد کامیاب جوان پروگرام کے ذریعے کاروبار کے لیے قرضہ حاصل کر سکتا ہے۔ مجموعی طور پر جو 100 ارب رکھے گئے ہیں اس میں سے جو 70 ارب ہیں، کوشش یہی ہوگی کہ سارے کے سارے 70 ارب ہم تقسیم کر دیں اسی سال، لیکن 50 ارب انشاءاللہ تعالی ہم تقسیم کریں گے، جس سے کم از کم 30 سے 40 ہزار نئے کاروبار شروع کیے جائیں گے، اور ہم نے ہدف رکھا ہے 1 لاکھ انشاءاللہ تعالی براہ راست روزگار پیدا کرنے میں ہمارا اس سال کامیاب جوان جو بزنس لون پروگرام ہے کامیاب ہوگا۔ عثمان ڈار نے کہا کہ رواں سال 50 ارب روپے کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت نوجوانوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو قرضہ فراہم کرنے کے ساتھ فنی تربیت بھی دی جا رہی ہے۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین اب بات کریں گے پاکستان سٹیزن پورٹل کی، جو بن گیا ہے عوام کی آواز۔ عوام کے مسائل کا تیزی سے حل تحریک انصاف کی حکومت کی ترجیح ہے۔ سٹیزن پورٹل نے واقعین کے رہائشی ظہور احمد کی داد رسی کر دی۔ سائل کے والد مرحوم منظور احمد نے اپنی زندگی میں واجبات کی وصولی کے لیے متعلقہ محکمے کو شکایت بھی کی تھی۔ ظہور احمد کی کہانی جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ السلام علیکم، میرا نام ظہور احمد ولد منظور احمد ہے، میں واہ کینٹ کا رہائشی ہوں، اور میرا کچھ عرصے سے مسئلہ تھا ایک کہ میرے والد صاحب عالمی سے ریٹائر تھے اور ان کے کچھ ایریئر کے بقایا جات تھے جو انہیں نہیں ملے، تو انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کیس سی ایم اے لاہور بھیجا اور 6 ماہ تک اس پہ آبجیکشنز لگ کے آتے رہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہوا، تو اسی دورانیے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ کیس جو تھا یہ میں نے اپنی والدہ کے نام پہ ٹرانسفر کرانا تھا، تو اس سلسلے میں میں نے سی ایم اے لاہور اپنے ڈاکومنٹس بھیجے اور اس پہ مسلسل آبجیکشن لگ کے آتے رہے اور 16 ماہ تک یہ مسئلہ میرا حل نہیں ہوا۔ تو پھر میں نے سٹیزن پورٹل پہ اپنی شکایت درج کرائی اور یہ ہے کہ الحمدللہ میرا 1 ماہ کے اندر اندر جو ہے یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے اور جتنے بھی واجبات تھے وہ ادا کر دیے گئے ہیں اور الحمدللہ میں اب خوش ہوں، اور اسی سلسلے میں وزیر اعظم صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، سندھ حکومت نے صوبے میں اسکول کھلے رکھنے اور تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بات کا فیصلہ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ہونے والے کورونا سے متعلق صوبائی ٹاسک فورس کے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام سرکاری اور نجی اسپتالوں کا سروے کر کے گنجائش کا جائزہ لیا جائے گا، اور وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوامی مقامات پر ماسک پہننے کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ جو سرکاری افسران ماسک نہیں پہنیں گے ان پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اجلاس میں تمام شادی ہالز، مارکیٹس، عوامی مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا اور شادی کی تقریبات میں کھانا باکس میں دینے کی ہدایت کی گئی۔ اجلاس میں ویکسینیشن مہم پورے صوبے میں تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے اینٹ لگا کر سیون قلعے کی بحالی کا سنگ بنیاد رکھا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سندھ کی 5000 سال پرانی تاریخ ہے۔ صوبے کی ثقافتی اور تاریخی ورثے کی بحالی کے لیے حکومت متعدد اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اعلان کیا کہ آئندہ سال کے آغاز میں سیون اینڈ الیگزینڈر پر ایک بین الاقوامی کانفرنس کی جائے گی۔ سیون قلعہ 5ویں صدی کے آخر یا 6ٹھی صدی کے آغاز میں تعمیر کیا گیا تھا۔ قلعہ 1.27 کلومیٹر طویل اور 15 میٹر اونچا ہے۔ 1541 عیسوی میں ہمایوں بادشاہ نے یہ قلعہ فتح کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ بعد میں اکبر بادشاہ کے سپہ سالار عبدالرحیم خان نے خانہ مرزا جانی بیگ کو شکست دی، جس کے بعد سندھ مغلوں کے قبضے میں آ گیا۔ 1701 عیسوی میں مغل شہزادے نے یہ قلعہ کلہوڑن کے ابھرتی ہوئی قوت کے خلاف بطور دفاع استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دیگر اہم خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے دبئی ایکسپو میں صوبے کی سیاحت اور ثقافت سے سجے پویلین کی بھرپور پذیرائی پر مسرت کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کی خیبر پختونخوا پویلین میں غیر معمولی دلچسپی سیاحت کے سلسلے میں صوبائی حکومت کی شبانہ روز محنت کا نتیجہ ہے۔ محمود خان نے کہا کہ ایکسپو میں ہماری ٹیم پوری طرح متحرک ہے، جس کے نتیجے میں 4 غیر ملکی کمپنیز نے صوبائی حکومت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے معاہدے کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ صوبائی حکومت کی دبئی ایکسپو میں شرکت سے صوبے کی مصنوعات کو بین الاقوامی منڈیوں میں روشناس کرانے میں مدد ملی ہے۔
नाज़रीन, मुल्तान में मुस्तहिक अफराद के लिए जनरल बस स्टैंड के करीब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर एहसास दस्तरखान खोल दिया गया है। एहसास दस्तरखान का बाकायदा इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने किया। उन्होंने खाने का मेयार भी चेक किया। एहसास दस्तरखान पर मुसाफिरों और नादार लोगों को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक बिला मुआवजा खाने की फराहमी शुरू कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने एक बयान में कहा कि गरीब और बेसहारा अफराद मुआशरे की खुसूसी तवज्जो के तालिब हैं और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ऐसे अफराद और तबके का सहारा बनी है। उन्होंने कहा कि बस अड्डों पर एहसास दस्तरखान का दायरा मज़ीद बढ़ाया जाएगा और दीगर शहरों में भी एहसास दस्तरखान कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया मुल्तान ने एहसास दस्तरखान कायम करके अहसन कदम उठाया है। उधर शेखुपुरा में मुखय्यर हजरात और ज़िला इंतज़ामिया ने मुस्तहिक अफराद के लिए एहसास बाजार कायम किया है, जहां मुस्तहिक अफराद को गर्म मलबूसात के साथ आटे का थैला भी मुफ्त दिया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इस्लाम गाजी। एहसास बाजार कायम करने का मकसद सर्द मौसम की शिद्दत के पेश नजर मुस्तहिक अफराद खसूसन मजदूर तबका के लिए आसानियां पैदा करना है, जहां उन्हें बाइज्जत तरीके से गर्म मलबूसात के साथ 10 किलो आटे का थैला भी मुफ्त फराहम किया जा रहा है। सूबाई वजीर डिजास्टर मैनेजमेंट मियां खालिद महमूद ने एहसास बाजार का दौरा किया। मैं जो हमारे यहाँ के मुस्तहिक लोग हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट के, मेरे शहर के, उनसे अपील करता हूँ कि ज़रूर यहाँ विज़िट करें और यहाँ से ये जो इनके लिए उनकी ज़रूरियात के लिए स्मारक है इसको ज़रूर यहाँ से लेके जाएं। शेखुपुरा में भी हमने जो है जी इसका एक एफ़र्ट की है और ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोगों को रजिस्टर्ड भी किया जा रहा है। बड़े अच्छे तरीके से, बड़े उनको रिस्पेक्टफुल तरीके से यहाँ पे पहले उनको वैक्सीन भी किया जा रहा है जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई। एहसास बाजार में आने वाले शहरियों ने इंतजामिया की काविश को सराहा और कहा कि एहसास कफालत प्रोग्राम इनके लिए किसी बड़ी नेमत से कम नहीं। ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਟਾ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ। अल्हम्दुलिल्लाह ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ गवर्नमेंट ਦਾ अच्छा इकदाम है। ज़िला इंतजामिया की जानब से एहसास बाजार में आने वाले शहरियों के लिए कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने की सहूलत भी फराहम की गई है। एहसास बाजार कायम करने का मकसद मुस्तहिक अफराद को मौसम की शिद्दत से महफूज रखने के साथ साथ बाइज्जत तरीके से उनकी जायज़ ज़रूरियात को पूरा करना है। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शेखुपुरा। पंजाब के दीगर शहरों की तरह पाकपतन में भी मुखय्यर हजरात के ताउन से दीवार एहसास कायम की गई है। यहाँ गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए मुफ्त गर्म मलबूसात का इंतजाम है। तफसील जानते हैं अब्बास अली आरिफी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक ज़िला कौंसल पाकपतन में कायम दीवार एहसास में मुखय्यर हजरात के ताबन से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से गरीब और नादार अफराद खसूसन ख़वातीन और बच्चों को जर्सी, स्वेटर और जुराबें वगैरह मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। यहाँ पर गरीब और नादार अफराद को गर्म मलबूसात जिसमें जूते, स्वेटर, जर्सियाँ, गर्म टोपियाँ वगैरह बिल्कुल मुफ्त फराहम की जा रही हैं। तो मुखय्यर हज़रात से हम अपील करते हैं वो इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। गर्म मलबूसात मिलने पर गरीब शहरी हुकूमत के साथ साथ मुखय्यर हजरात का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। द्वारे असास ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੀ ਵਗੈਰਾ, ਟੋਪੀਆਂ, ਜਰਾਬਾਂ, ਇਹ ਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਦਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ। ਜਰਾਬਾਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ठिठराती सर्दी में गरीब आवाम को गर्म मलबूसात का मिलना किसी नेमत से कम नहीं। मुखय्यर हजरात की मदद से दीवार एहसास का क़याम ज़िलाई इंतज़ामिया पाकपतन का अहसन इक़दाम है। अब्बास अली आरफी, PTV न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न्यूयॉर्क के सेक्रेटरी जनरल खुर्शीद भली ने मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज PTI का असासा है। तरसीलात ज़र में दिन ब दिन इजाफा ओवरसीज पाकिस्तानीज का वज़ीर आज़म पर एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। गवर्नर पंजाब ने खुर्शीद भली की अमरीका में खिदमात को भी सराहा। मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न्यूयॉर्क के सेक्रेटरी जनरल खुर्शीद भली ने कहा कि जिस तरह वज़ीर आज़म ने ओवरसीज पाकिस्तानीज के मसाइल के हल में दिलचस्पी ली है उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक देना मौजूदा हुकूमत का एक बड़ा कारनामा है।
एबटाबाद में सलाम उस्ताद के नाम से टीचर्स कन्वेंशन हुआ, जिसमें असातिज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसका मकसद मुआशरे की इस्लाह में असातिज़ा के किरदार की अहमियत को उजागर करना और दर्स व तदरीस से मुंसलिक अफराद की हौसला अफजाई करना था। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक अहमद गनी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि उस्ताद का काम किताबी तदरीस और कमरा इम्तिहान तक महदूद नहीं, बल्कि बच्चों की तरबियत और मुस्बत जहन साजी भी उनका काम है। तकरीब के अख्ताम पर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और दीगर मेहमानों की पाकिस्तान टीचर्स फोरम की तरफ से एजाज़ी शील्ड दी गई। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा है कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। आईन पाकिस्तान हर शख्स को यकसां हुकूक देता है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि 2022 को पैगाम पाकिस्तान अमन व सलामती के साल के तौर पर मनाने का ऐलान किया। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम की इंतहा कर दी गई है, इन्हें मुल्क से बाहर निकालने की धमकियाँ मिल रही हैं, जबकि पाकिस्तान में अक़लियतें पुरअमन तरीके से आबाद हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को भारत क्यों नजर नहीं आ रहा। तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरी वाक़े की इंक्वायरी जारी है, जिसकी रिपोर्ट बहुत जल्द सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि मरी वाक़े में गफलत के मुर्तकब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तकरीब से खिताब करते हुए हसन खावर ने कहा कि दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज IT के शोबे से मुंसलिक हैं। मौजूदा दौर में प्राइवेट कंपनीज का किरदार बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है। हमें आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि कंपनीज की कामयाबी में सबसे अहम किरदार ह्यूमन रिसोर्स का होता है। हमारे तालीमी इदारों को चाहिए कि तलबा को आने वाले वक्त के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए तैयार करें। कोयटा में बलोचिस्तान IT यूनिवर्सिटी के सालाना कॉन्वोकेशन में पास आउट होने वाले 900 तलबा व तलबात को डिग्रियों से नवाजा गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर आगा थे। मुख्तलिफ शोबाजात में बेहतरीन कारकर्दगी पर 40 से ज़ायद तलबा व तालिबात को गोल्ड मेडल, जबकि 4 को बैज ऑफ ऑनर से नवाजा गया। गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर आगा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नौजवान अपनी तालीम को अमली शक्ल देकर मुल्क व कौम की खिदमत को यकीनी बनाएं। मुआशरे में मुस्बत इक़दार के फ़रोग़ के लिए तालीम याफ्ता नौजवान हमारा कीमती असासा हैं। विजडम्स यूनिवर्सिटी के 17वें कन्वेंशन में वाइस चांसलर अहमद फारूक बाज़ई ने भी खिताब किया। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की तरफ से ज़रूरी सतह पर बनाए गए शेल्टर होम्स घरेलू और जिनसी तशद्दुद का शिकार और बेसहारा ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के साथ कानूनी मुआवनत भी फराहम कर रहे हैं। इन तमाम शेल्टर होम्स में माहिरीन नफ्सियात और डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। इस हवाले से देखिए ननकाना साहब से जावेद अहमद माफिया की ये रिपोर्ट। महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब के ज़ेरे इंतजाम ननकाना साहब में बनाए गए शेल्टर होम में साल 2021 में घरेलू और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनने वाली 114 खवातीन और 19 बच्चों को रिहाइश, तलीम, खाना और मेडिकल की बेहतरीन सहूलियात बिल्कुल मुफ्त फराहम की गई। वो ऐसी जगह पर आके अपने आप को महफूज तस्वर करने लगी। एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग होती है यहाँ पर और लीगल एड मुहैया की जाती है। इसके अलावा मेडिकल सेशंस हैं। हुकूमती इदारों के साथ साथ समाजी तंजीमें भी शेल्टर होम में मुकीम बेसहारा खवातीन की मुश्किलात कम करने और उन्हें मुआशरे में बाइज्जत मकाम दिलाने के लिए सरगर्म है। समाजी तंजीम की तरफ से शेल्टर होम में मुकीम खवातीन और बच्चों में तोहफे तकसीम किए गए। आज के सूट तकसीम करना ये उनके लिए सर्दियों के मौसम में एक गिफ्ट है और उनको मिलने का एक बहाना था, यहाँ पे आने का, उनसे मिलने का, उनसे बातचीत करने का, और हम इंशाल्लाह यहाँ पे आते रहेंगे। शेल्टर होम में कैंप के दौरान खवातीन को वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए हुनरमंद भी बनाया जाता है ताकि वो घर वापसी पर बाइज्जत रोजगार शुरू कर सके। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। और नाज़रीन, रहीम यार खान में दही कल्चर के फरोग के लिए जमींदारों ने लगाया गुड़ मेला, जिसमें शहरियों के लिए तफरीह के साथ गुड़ के फवायद के बारे में आगाही दी गई। मजीद बताएंगे अशफाक अहमद। गुड़ के फवायद और रवायती देसी कल्चर को उजागर करने के लिए रहीम यार खान के जमींदारों की जानिब से गुड़ मेले का एहतमाम किया गया। ये जो गुड़ मेला लगाया गया है यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि देही इलाकों से भी 24 चक में, यानी कि यहाँ पर जंगल में मंगल का समा बना हुआ है। देहातों के बच्चे लोग सब यहाँ पर हैं और शहरों से भी लोग इधर आए हैं और मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगाए हैं और ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। इस तरह के मेले सजाए जाने चाहिए।
अपनी नौयत के इस मुनफरिद मेले में गुड़ और शक्कर की तैयारी और यहाँ आने वाले शहरियों को गुड़ के फवायद के बारे में आगाही दी गई। चौलस्तानी फनकारों ने इस मौके पर अपने फन के जौहर दिखाकर मेले को 4 चांद लगा दिए। दही सकाफत को उजागर करने के लिए सजाया गया गुड़ मेला शहरियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। लोगों ने इस मेले के इनेकाद पर मुंतज़मीन की तारीफ की। मोहसिन नकवी की शायरी में रुमान और दर्द का अंसर नुमायां महसूस होता है। उनकी बहुत सी गज़लें और नज़में ज़बान ज़द-ए-आम हैं और उर्दू अदब का सरमाया भी समझी जाती हैं। मोहसिन नकवी के यौम वफ़ात पर देखिए वकार हैदर की ये रिपोर्ट। हवा का लम्स जो अपने किवाड़ खोलता है तो देर तक मेरे घर का सुकूत बोलता है। मोहसिन नकवी नाम ऐसा कि हर शख्स जानता है। सैयद गुलाम अब्बास ने शायरी में अपना तखल्लुस मोहसिन नकवी रखा। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज बोसन रोड मुल्तान से ग्रेजुएशन और फिर जामिया पंजाब से एमए उर्दू किया था। इब्तिदा में मोहसिन नकवी ने मजाजी शायरी की, लेकिन बाद में उनका रुझान मरसिया निगारी की तरफ हो गया। उन्होंने अपनी शायरी में वाक़े करबला के इस्तारे जा बजा इस्तेमाल किए। उनकी तसानीफ में बंदे कबा, अजाबे दीद, खैमाए जान, बरगे सहरा, लुए अश्क, हक्के एलिया, रख्ते शब, रेज़ाए हर्फ और मौजी द्राक शामिल हैं। उन्हें अपनी शायरी की मकबूलियत का खूब एहसास था, जिसका उन्होंने इजहार भी किया। आइंदा नस्ल मुझको पढ़ेगी गजल गजल, मैं हर्फ हर्फ अपना हुनर छोड़ जाऊंगा। मोहसिन ने बड़े नादिर और नायाब ख्यालात को अशार में इस तरह ढाला कि शेर की समझ बूझ रखने वाला दंग रह जाता है। मोहसिन नकवी की रुमानवी शायरी नौजवानों में भी खासी मकबूल है। वकार हैदर, पीटीवी न्यूज, इस्लामाबाद। उसे गंवा के मैं जिंदा हूँ इस तरह मोहसिन के जैसे तेज हवा में चिराग जलता है। और अब बात करते हैं 20वीं सदी के मारूफ शायर, मुसन्निफ और कॉलम निगार सूफी वासिफ अली वासिफ की, जिनका आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। ये वासिफ अली वासिफ ही थे जिन्होंने मोहब्बत में गैर की राय को हराम करार दिया। मज़ीद जानिए वकार हैदर की इस रिपोर्ट में। ये तारुफ नामा है हजरत वासिफ अली वासिफ का। वासिफ अली वासिफ 15 जनवरी 1929 को खुशाब में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल खुशाब से हासिल की, जिसका असल नाम मनमोहन नाथ हाई स्कूल खुशाब था। ग्रेजुएशन करने के बाद एमए अंग्रेजी अदब के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर आ गए। नाभा रोड पर लाहौर इंग्लिश कॉलेज में दरसो तदरीस के शोबे से वाबस्ता हो गए। अच्छे उस्ताद होने के साथ साथ अच्छे शायर भी थे और नौए वक्त में हर हफ्ते उनका कालम भी छपता था। कई एक किताबों के मुसन्निफ वासिफ अली वासिफ की तसानीफ में कतरा कतरा कुलज़म, हर्फ हर्फ हकीकत, दिल दरिया समंदर, बात से बात, गुमनाम अदीब, जिक्र हबीब, मुकालमा, दरीचे और पंजाबी शायरी का मजमुआ भरे भड़ोले भी शामिल हैं। शायरी भी कमाल करते थे। लिखते हैं, ना आया हूँ न लाया गया हूँ, मैं हरफे कुन हूँ फरमाया गया हूँ। वासिफ अली वासिफ के 2 कौल आप भी देखिए। कहते हैं, अगर सुकून चाहते हो तो दूसरों का सुकून बर्बाद न करो। और इखलाकियात पर बात करते हुए कहा, इखलाक ये है कि अल्लाह की रजा के लिए अपने मिजाज को बद इखलाक न होने दें। वकार हैदर, पीटीवी न्यूज, इस्लामाबाद। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। हल्की सी दरमियानी बारिशों का सिलसिला मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में मंगल के रोज़ दाखिल होगा, जो कि जुमेरात तक बालाई इलाकों में मौजूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल और बुध के रोज़ कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई की गई है। मंगल से जुमेरात की सुबह तक इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई की गई है। मंगल रात से जुमेरात के दौरान मरी, गलियात, नथिया गली, कागान, नारान, चित्राल, तीर, स्वात, कोहिस्तान, अस्तौर, हुंजा, गिलगित, वादी नीलम, बाग और हवेली के अजला में हल्की से दरमियानी बर्फबारी हो सकती है। मुल्क में होने वाली हालिया बारिश गंदम की फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगी। मंगल और बुध को दीन, मलकन, हजारा, स्वात, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खतरा भी है। बारिशों से हालिया शदीद धुंध में कमी का इम्कान है। और नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ ही कैबिनेट आवर का वक्त मुकम्मल हुआ। हमें हमारी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।